अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आइए साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की सैर को चलते हैं और देखते हैं कि हस्बे हाल के साइंसदान आजकल किन खराफात पर तहकीक कर रहे हैं। लो ओए ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖਰਾਫਾਤ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਠੋ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੀ? ਲਓ ਚਾਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਚਾਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਕੰਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਆਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੇਕੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਬੇਟੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ है। बेटे, जब साइंस की बात आप नहीं सुन सकते तो फिर आप इसी तरह जुगते ही सुना सकते हैं। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਫਾਤ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। चलो जी, फिर एंकर साहब ने किया है, पढ़े लिखे आदमी भी इन्हू खुराफात ही समझते ने, तो फिर खुराफात ते ही तहकीक सुन लवो। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल जुबान फिसल गई थी, वरना मैं मौजूआत ही कहना चाह रहा था। जुबान फिसल गई है, इसका मतलब है कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर जुबान कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है। और अगर दिमाग काबू में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी प्रेशर में हो। अब यहाँ प्रेशर तीन किस्म के हो सकते हैं। एक शो का प्रेशर, एक माहौल का प्रेशर और एक भाभी का प्रेशर। वाह बेटा, साइंस ये कहती है कि ये जो तीसरा प्रेशर है ये सबसे अहम है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਚਾਚਿਓ, ਪਰਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਮਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਭਾਬੀ ਆਂਦੀ, ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ। बेटा, तू बेशक हारन मुंह तो एंबूलेंस वाला ही कढ़ना है, मगर लगता तेन वेख के ये कि अग बुझाने वाली गड्डी आ रही। वैसे वाकई मैंने आज गौर किया है अली मुमताज साहब की तरफ। प्यारे वाकई इतने हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस तरह की लड़की रिसेप्शन पे बैठाई होती है। और सिर्फ बिठाई होती है, भाग दौड़ साथ थैले जैसी लड़की कर रही होती है। यार तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सर, आप तहकीक की तरफ आए, कोई मौजू नहीं है आपके पास? बेटे, तहकीक तो बेशुमार की है मैंने, और मैं सुनाना भी चाहता हूँ, मगर आप बात दूसरी तरफ ले गए थे। साइंसदान तहकीक नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚਾਚੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। बेटे, साइंसदानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये खाने पीने की चीजों पे अपना वक्त जाया करते फिरें। ये तुम लोगों की आदतें हैं। 2-2 किलोमीटर का सफर तय करते हो सिर्फ इस चक्कर में कि वहां पे पाए बहुत अच्छे बिकते हैं। ਚਾਚਿਓ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਪਾਵੇ ਖਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਪਾਵੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਜੋਗਰ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।
वाह 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 गोगा जी, वैसे तुसी 3 पैरां वाला जॉगर लिया करो, 2 पैरां च पाया करो, एक पिछे लटका लिया करो, तुहानू नजर ना लगे। ਚਾਚਿਓ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਅਪ ਆ? बेटा हुण ते चाइना ने बड़ी बड़ी वड्डी गड्डी भेज दी है, तेरे जेन चले पिकअप भी फंसी है या तेरे जेन च खाना फंसे है? यानी मेरे शागिर्द को खाना लेने भेज दिया। मैं साइंसदान हूं या वेल्डर हूं? ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੋਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਿਕਅਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਅਪ 'ਚ ਦੇਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। मुझे तो लगता है कि आप भी यहाँ इनके साथ मिलकर जुत्तों में तहकीक करने आते हैं। आपने नई तहकीक क्या की है उसके बारे में बताइए। बेटा मैं वही बताने लगा था, ये उचक लेते हैं बीच में से। उचक लेना तो समझते होगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे शादी की जब रोटी खुलती है तो गोगा सबसे पहले मटन वाली परात उचक लेता है। वाह वाह वाह। उसी तरह मैं बता रहा हूं कि आप लोग मेरी तहकीक उचक लेते हैं। बेटा आज की तहकीक हस्बे हाल भी है और हस्बे जायका भी। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਹੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। अली बेटे मैं एक जूतों की कंपनी के दावे पे तहकीक कर रहा हूं। अच्छा, एक जूतों की कंपनी का दावा है कि हमने एक ऐसे जूते तैयार कर लिए हैं जो दिमाग में तब्दीलियां ला सकते हैं। ਲਓ ਕਰ ਗੋਗੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ। बेटा उस कंपनी का दावा है कि हमारे जूते इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्मानी भाजनस बेहतर होती है बल्कि दिमागी हालत भी बेहतर हो जाती है। अरे वाह। और तवज्जो मरकूज करने में आसानी होती है, क्योंकि ये जूते ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो पहनने वाले की पांव में हल्की सी तहरीक पैदा करते हैं। इस तहरीक को आप हल्की सी गुदगुदी भी कह सकते हैं। और ये गुदगुदी जो है ये दिमाग को फाल करती है, जिससे बंदा ज़हनी तौर पर ज्यादा हाजिर रहता है। अरे वाह। खास तौर पर उस वक्त जब बंदा प्रेशर में आया हो। ये तो वाकई बड़े अजीबोगरीब जूते हैं। हाँ बेटे, जूते तो उन्होंने दावा किया है बड़े अजीबोगरीब हैं, लेकिन जब मैं आपके यहाँ पाकिस्तान में आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे तो साइंस बड़ी एडवांस है। जूतों की इस कंपनी ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ये आइडिया चोरी किया है। इस खित्ते के लोगों ने तो जूते की ये बरकत पहले से ही महसूस कर ली थी और यहाँ सदियों से इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। वाह। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पहले से ही पता है कि जूता दिमाग को फौरन फाल कर सकता है। और मुझे यूं लगता है कि इस जूते बनाने वाली कंपनी ने ये आइडिया पाकिस्तानी माँ के जूते से हासिल किया। यहाँ तो बच्चा चारपाई पे लेट के वीडियो गेम खेल रहा हो, उधर से माँ का जूता आता है, गेम सारी उधर हो जाती है, बच्चा एक सैडल हो जाता है और फौरन बादब हो के कहते माँ जी हुक्म करो की कर। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जूते बनाने वाली कंपनी ने ये आइडिया पाकिस्तान में होने वाली जूता बारी से हासिल किया है। दूसरे मुल्कों में मैंने बर्फबारी होते देखी है, ज़ालाबारी होते देखी है, गोलाबारी होते देखी है, मगर जूता बारी सिर्फ पाकिस्तान में होती है। क्योंकि यहाँ जब भी बच्चे का दिमाग ना चल रहा हो, वालदा फौरन जूता बारी शुरू कर देती है। और सिर्फ वालदा ही नहीं, वालिद साहब भी कई दफा जूता ठुकाई की रस्म अदा करते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ बेटा कि ये जो जूते के साथ दिमाग फाल करने की साइंस है, ये अमेरिका और यूरोप से पहले बर्रे सगीर वालों को मालूम थी। कि मेरा अपना ये मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा तेंदुलकर की तरह अड़ जाए तो वालिद मोहतरम अपना जूता उतार के शुएब अख्तर की तरह ऐसा गेंद कराते हैं कि बच्चा फौरन विकेट छोड़ देता है। ਲਓ ਚਾਚੀਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦਾ ਹੀ ਗੇਂਦ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ओए पैड रखने वाले थैले। मैं तहकीक कुछ और सुना रहा हूँ, बात कहीं और ले गया। मैंने मिसाल दी है बेटे। अच्छा चाचा जी बात सुनिएगा, एक्सक्यूज मी। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਚਾਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। यार मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। बेटे बात ये है कि ये जो साइंस होती है ना,
एक मिनट बेटे जरा मेरे लता सेट करते हैं, थोड़ी जी देर लगती है। कहना मैं ये चाह रहा था बेटा कि साइंस बड़ी बारीकी से सारी तहकीक करती है, और मैंने आपके खित्ते में यानी बर्रे सगीर में ये तहकीक की है कि यहाँ पे चूंकि अब जूते का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है, इसलिए बच्चों के दिमाग भी इतने एक्टिव नहीं रहे जितने पहले होते थे। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि तहकीक के दौरान ये पता चला है कि ये जो जेनजी हैं, जेनजी ये जो नई जनरेशन है आपकी, ये तारीख की पहली ऐसी नस्ल है जो जहानत के एतबार से अपने वालिदैन से कमजोर है। वरना जितनी भी तारीख मौजूद है उसमें तो यही देखा गया है कि हमेशा बच्चे वालिदैन से ज्यादा ज़हीन होते रहे हैं। मगर चूंकि ये जो जेनजी हैं इन पे जूते का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए ये अपने वालिदैन से ज्यादा ज़हीन नहीं है। देखिए मैं अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ। नहीं घर बेटे मानते थे असी भी नहीं, मगर ये जेड़ी तू ओदी वालदा दी गल कीती है वो ते वाकई सच्ची है। क्योंकि बेटे कहीं कहीं तो ऐसा हो सकता है कि अब्बा नलायक होवे और बच्चा लायक होवे। और ये जो तहकीक है, आप जरा एक और पहलू सुनिए। डॉक्टर जैरेड कोनी हार्मथ जो एक अमेरिकी दिमागी साइंसदान है, उनका कहना है कि 1997 से 2010 के दरमियान पैदा होने वाले अफराद जो हैं वो तालीमी निजाम में हद से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से जहानत में कमी का शिकार हो रहे हैं। ये डॉक्टर हार्मथ ने 15 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेनेट की एक कमेटी को बताया है कि जब से हमने दिमागी सलाहियतों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, उसमें से जनरेशन जी की ज़हनी नशोनुमा की सतह सबसे कम देखी गई है। अब बेटा बाकी लोग जो मर्जी कहते रहें, मगर मेरा मानना यही है चूंकि वालिदैन का जूता एक्टिव नहीं रहा, इसलिए बच्चों की जहानत में कमी आई है। चाचा जी चलो मेरे ना कुजरा वाले ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। बेटा कुजरां ले जान दी की लोड़ है, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਰਾਦੀਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। जाहिल आदमी, मैं ऐसी ऐसी कमाल बात सुना रहा हूं और उन लोगों को सिर्फ जुगतों की पड़ी हुई। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੈਟਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ डिजाइनर की बददुआ लग गई है। चाचा जी ये दिमाग तेज करने वाले जूतों की कीमत क्या होगी? बेटा कीमत इसकी आप लोगों की रेंज से जरा बाहर है। ये जूता जो है ये 80 पाउंड से लेके कुछ 450 पाउंड तक मिलेगा। ये पाकिस्तानी को 2.25 लाख रुपया बनता है। और आप लोगों को आदत है दुकान के बाहर फट्टे के ऊपर से 450 वाले 3 जूते लेने की। रहने दे जी इतने महंगे जूते, बंदा 4-5 हज़ार दे बादाम लवे घर रखे, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ, सवेरे उठ के गिरियां छिल के खावे, दिमाग फिट हो जाता। ये फिट होने का सुन के मुझे एक और तहकीक याद आ गई। जिन्याती माहिरीन का कहना है कि अनकरीब ऐसा दौर आ जाएगा जब 150 साल तक जिंदा रहना मुमकिन हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इंसान की हयातियाती उम्र को पीछे की तरफ मोड़ा जा सकता है। जी हाँ, यानी बुढ़ापे के बाद लोग दोबारा जवान हो जाएंगे। अच्छी तहकीक दसी जे, दादा अबू घर आके सरप्राइज देंगे, लो भाई बच्चियो मेरा पहला काला बाल निकल आया जी। ਡਿੱਗੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਝੁਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਾਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਬਈ ਨਵੀਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ऐसे यकीन माने इस तहकीक पे मैं भी बड़ा खुश हूँ। साइंसदान साहब 150 साल बड़ी उम्र बता रहे हैं आप, इसमें 100 साल बाद सांप बनने का डर तो नहीं होगा? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋ? बेटा ये तू जुगत नहीं कीती, तू अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। क्योंकि बेटे तेरे जेन चे वेख के मैं 100 रुपये वाला सालन लैके ते टुरा, शोरबा प्लेट चो सज्जे खबे डिगे और तू मुंह नाल हवा चो कैच करेंगे। सॉरी चाचा जी सॉरी, ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਜੁਗਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
चलें बेटे, इनको खाने पीने की तहकीक भी सुना देते हैं। वाह। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि फलां बेकरी से कई हजार गंदे अंडे पकड़े गए, जी फलां फैक्ट्री में खाने पीने की अशिया के अंदर गंदे अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाय हाय। अब बेटा साइंस ने ये मसला भी हल कर दिया है। अच्छा। आपको पहले ही पता चल सकता है कि अंडा गंदा है या साफ। आप अंडे को पकड़ के ठंडे पानी के गिलास में फेंकें, अच्छा। अगर अंडा नीचे बैठ जाएगा पानी में वाह। तो इसका मतलब है अंडा साफ है। अगर अंडा पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाए, पानी के ऊपर ही ठहर जाए, तो इसका मतलब है कि अंडा गंदा है। ये तो मेरी दादी भी कहती थी। बेटे मैं तो पहले ही कह चुके हैं कि तुसी सारे ही साइंसदान हो। साइंस देखे ना, आप बता रही है कि अगर पानी में अंडा फेंकने से अंडा तैरना शुरू हो जाए जी। तो वो गंदा है। हाय। अब आप गोगे को ले जाएं और जाके नहर में धक्का मार के इसे चेक करें। हद हो गई है। मैं तो आपको दाद देने लगा था इस तहकीक की। हाय। बेटे दाद जुबानी नहीं मेरा बेटा, वो आपको पता ही है, दाद मैं नकद लेता हूँ बेटी। आओ जी, आगे जी। लाए बेटा, मेरा ख्याल है उधर से शुरू होना चाहिए, मगर चूंकि मैं इधर पहुंच गया हूँ, इधर से शुरू हो जाता हूँ। ला बेटे। हेलो फड़ो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਦਮ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया। आमदन होनी चाहिए बेशक किसी गल तो होवे। हाय। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, क्या तू मेरा बड़ा ताया बने है भाई। लाओ बेटे लाओ। ਐਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ 50 ਤੇ 50 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। बेटे मैं तेन ये वापस कर देंदा, मगर तू गुजरां ले जाना है, तेरी नोट जेब च होएगा तो तू जानदा थक जाएगा। लो जी 100 रुपया तो लुटियां पाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਛੱਲੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ। चलो कोई गल नहीं बेटे, हुण सवाल ही छली ना खावी, सुहा खा लवी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ। What do you mean by उम्रा? यार इसको बताओ यार, ये क्या करता है यार? नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर कोई होशियार बनता है, चालाक बनता है, जी। तो उसका अंजाम वही होता है जो कोई आम के बाग में आम चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसका होता है। उसका क्या अंजाम होता है जी? गोगा जी, आप इंतहाई बेअदब इंसान हुए हैं। आपको यह भी नहीं मालूम कि आम के बाग में आम चोरी करते हुए को पकड़ा जाए तो उसे क्या सजा मिलती है। शायर ने कहा है, मैं अम्ब चूपन ले गई बाग विच फड़ी गई। आम के बाग में जो आम चोरी कर रहा हो वो पकड़ा जाता है। हाय। आप कौन से चोरी सुनाने लगे हो? और जनाब, ये खबर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चालाकी होशियारी का अंजाम पाया जाता है। खबर यह है कि बरतानिया में माजूरी का बहाना करके कैद से बचने वाला मुजरम बॉक्सिंग मुकाबले में लड़ते हुए पकड़ा गया। कार्डिफ शहर का रिहायशी मुजरम एंटन बोस्टन जानवरों को बुरी हालत में रखने के जुर्म में जेल काट रहा था। अच्छा। उसने जज से अपील की कि मैं माजूर इंसान हूं, मुझे पेरोल पर रहा किया जाए। जज ने रहम खाकर उसे घर भेज दिया, लेकिन निगरानी करने वाली पुलिस ने उसे एक बॉक्सिंग मुकाबले में लड़ते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛੇ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। गिरफ्तारी वक्री, ठंड सारी रात वक्री लगती रही। और क्या, उसको रेफरी सीटी बजा के बाहर निकालता और उसे कहता कि भाई जी जरा कपड़े बदल लो, तानू पुलिस गिरफ्तार करने लगी। जब छापे पड़ते हैं तो फिर तो मां बच्चा नहीं संभालती। वाह। जिथे जिथे जिस हालत में भी जो हो उसे उठा लेते हैं। हाय। आप देखे तो सही उसकी चालाकी। यानी जज साहब को कह दिया कि जज साहब रहम करे, मैं माजूर हूं। और किस तरह डींगा सीधा बन गया है। मुझे पैरोल पे रिहा कर दे, मैं माजूर आदमी हूं हजूर। उस बेचारे ने जे रिहा कीता है ते जाके बॉक्सिंग दे मुकाबले च कर रहा है। कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन।
अच्छा, अब इस खबर के 3 दिलचस्प पहलू देखें। जी। पहली बात यह है कि बर्तानिया में भी ऐसे फराडिये मौजूद हैं और इनकी तादाद काफी ज्यादा है। अच्छा। दूसरी बात यह कि जज चाहे बर्तानिया का क्यों ना हो, उसको जब मुजरम कहता है ना कि गॉड ने तेनू बड़ा देना ही, तेनू अल्लाह ने बड़ा देना ही, मौला ने तेनू खुश कर छड़ना है, जोड़ियां सलामत रहनियां ने तेरी, तेरी मेहरबानी, मैं मस्कीन आदमी, मैनू जान दे बस तेरी खैर हो। तो जज बेचारे का दिल लरम हो ही जाता है। और तीसरी बात यह कि जेल से छूटने के बाद भी मुजरमों की निगरानी होती रहती है ताकि वो दोबारा किसी गलत काम में ना पड़ जाए। वाह, अब पुलिस उसे वाच कर रही थी जी जी, तो उन्होंने पकड़ लिया ना कि हैं तो मयूर करके छड़े ऐसे उछल रहे हैं। जेम्स बॉन्ड, आप ये स्टेप ना करें, साड़ियां उम्र नहीं रही और नचन टपन वालियां। What do you mean by उम्रा? यार इसको बताओ यार, ये क्या करता है यार? नहीं गुस्सा न चढ़ाओ मुझको। ऐसे ना करो, कल ऐसे करते हुए गिट्टा कढ़ा लिया सी तुसी। यानी कल गिट्टा कढ़ा लिया सी ते अज शो किवें करन डे आ भाई? पहले जुगत तो सोच समझ के किया करो, बाकी जिंदगी तो चलो तुम नहीं सोच समझ के गुजार रहे, जुगत तो तुम्हारा पेशा है, पेशे के साथ तो ना बेईमानी करो। अच्छा, वैसे इस बंदे का अंजाम जेल ही होना था, क्योंकि जब जज को पता चलेगा कि इसकी दुआएं और मिन्नतें तरले झूठे थे, हाँ जी, तो उसने इसकी 3 साल कैद को अब 6 साल करके साथ चक्की भी ऐड कर देनी है। लो, कैसे भेजो यार किसी मुश्किल सी बैरक में, क्या? ताकि इसकी सारी जिंदगी उधर बॉक्सिंग निकलती रहे। तो ये मुजरिम किस चीज का था और पकड़ा क्यों गया था? अयोर अपनी हरकतों से पकड़ा गया था। इसने 6 पालतू कुत्तों के कान काट दिए थे और उनकी सफाई का ख्याल भी नहीं रखता था, जो कि वहां पे बहुत बड़ा ये जुर्म समझा जाता है। और ये आपको मालूम ही होगा, आप माशाल्लाह खुद वलैती पेंडू हैं। ये कुत्तों के बच्चों के कान काट देते होते थे लोग, तो इस पे फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पाबंदी लगाई गई कि ये जुल्म है। तो उसने कान काटे उनके, हाय हाय, अपनी तरफ से कुत्ता जरा होर डिजाइन दा बनाने वास्ते। तो अदालत ने फिर इसको कैद और 15 बरस तक कुत्ते पालने पर पाबंदी की सजा भी सुनाई। 3 साल कैद ते 15 साल तक तू कुत्ता वेखे भी ना तो मुंह उधर नु करके लंघ जाए। अच्छा, वैसे तो ये माजूरी का बहाना बनाकर फ्रॉड करने वाला ये पहला बंदा तो नहीं है जी, और आखिरी भी नहीं है, इसलिए एक और खबर सुन ले, वो भी बर्तानिया की ही है। अच्छा, 2017 में एक खातून, जिसे इंग्लिश में वुमेन कहते हैं, वाह, एक खातून 15 साल से माजूरी का बहाना बनाकर हुकूमत से मुराद हासिल करने के इल्जाम में पकड़ी गई थी। लो, आपको पता है ना कि वहां मायूरों को मुराद देती है हुकूमत और बड़े तगड़े पैसे देती है। तो वो 15 साल से हुकूमत से पैसे ले रही थी और अदालत ने उसे सारे पैसे वापस लेने के साथ साथ 1.5 साल कैद की सजा सुनाई थी। अरे इसका नाम लिंडा था, लिंडा। ठीक है। और ये जब माई लिंडा पकड़ी गई तो इसकी उम्र 58 बरस थी, 58 ईयर्स। अच्छा, और इसने 15 सालों में हुकूमत से 65,244 पाउंड रकम माजूरी अलाउंस, जबकि 15,690 पाउंड की टैक्स छूट हासिल की थी। उसने जब माजूरी का ड्रामा शुरू किया ना, पहले तो उन्हें भी जाके कुछ किया होना। जज साहब, मैं मजूर हूं, ये मैं को अपने मुंडे दी तेल मेहंदी ते लोडियां नहीं पा रहे। ड्रामा कुछ किया होगा। उसने अदालत को बताया था कि उसकी कमर में तकलीफ है और वो सहारे के बगैर ना चल सकती और ना काम कर सकती है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, वही जो है पिछले बॉक्सर ना होया, हुआ कुछ यूं कि फड़ी गई। किसी ने उसकी तैराकी करते हुए और होटल में चाय की ट्रे उठाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और किसी पुलिस वाले का ध्यान पै गया कि यार ये तो वही लिंडा है जी तैराकी करन डई है। व्हाट इज दिस? जो कहती थी कि मेरी कमर में तकलीफ है और ना मैं खड़ी हो सकती हूँ ना मैं चल फिर सकती हूँ, ये तो तैराकी करन डई है। शाह साहब कोई लगाओ जुगत।
असल में शायद बहुत ज्यादा बेचारा जेलस हो जाता है कि भाजी तो मेरे नाल 18 साल वड्डे ने ते किवें लुड्डियां पाण। अच्छा जी, इसकी 58 साल उम्र होने की वजह से इसे सिर्फ 1.5 साल कैद की सजा हुई, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया जी कि इस खतून के सारे पैसे वापस लिए जाएं। हाय हाय, इस बेचारी ने तो दोबारा मजदूर बन के सड़कों ते पैसे मांग के वापस कीते होने ने। देखो ना जरा कैसा क्रिमिनल माइंडेड है ये थैला। यानी गवर्नमेंट के पैसे भी दूजे फ्रॉड नाल पूरे करके दुआ रहे हैं। अच्छा, इस तरह के फ्रॉड ये सिर्फ बरतानिया में ही नहीं पकड़े गए या पकड़े जाते, पाकिस्तान में तो ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे केस मौजूद हैं जो बेचारे मयूर बन के भीख मांग रहे होते हैं, हाँ जी और जब पकड़े जाते हैं तो इन्नी तेज नसते ने जिवें जुएद मियां दाद साहब पेचते दौड़ते सन। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक खातून लाहौर में फिरदौस मार्केट के इलाके में पकड़ी गई है, अच्छा जो माजूरी का बहाना बनाकर लोगों की जेबें काटती थी। डॉल्फिन पुलिस ने बताया कि ये खातून बस या ट्रेन या रक्शे में सवार होने से कबल खुद को माजूर जाहिर करती थी, हाय यानी रक्शे च बहंदे बहंदे करी थले डिगदी भी ही ताकि शहरी हमदर्दी में उसकी मदद करें, हाँ, और इसी दौरान वो वारदात कर देती थी। हाय जिस दिन वो पकड़ी गई उस दिन भी उसने एक बुजुर्ग शहरी की मदद लेने के बहाने उसकी जेब से 70,000 रुपए निकाल लिए। तो बाबा बेचारा उन्होंने फड़ के ते रक्शे च बिठान डे है जी कि मयूर है, हाँ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਲੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ? 70,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਐਸੀਆਂ नहीं ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ खवातीन को लुटे गए। जब बच्चों ने ये कहा तो बाबा जी ने ख्याल आया, हाँ वो एक और खतून तो वही थी जिसको मैंने सहारा दिया था, और वो तो मयूर थी। हाय ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਈ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਗੇ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ 3-4 ਵਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। गोगे तुम्हें खुद सहारे की जरूरत है, क्यों सहारे देते फिरते हो? असल में जेम्स बॉन्ड, मैं किसी औरत के सहारे जीना चाहता हूँ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ? ਉਸਕੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਓ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ये भुट्टो 1 साल पहले लाहौर से ही एक भिखारी पकड़ा गया था जो माजूर होने का ड्रामा करता था। अच्छा पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने ये बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उसने कहा जी कि जिस लड़की से मेरी शादी होनी है ना, जी उसके घर वालों ने रिश्ता देने के लिए भिखारी बनने की शर्त रखी थी। हाँ, कहता जी लड़की वालों ने कहा था कि हम चूंकि नस्ली भिखारी फैमिली हैं, इसलिए अगर लड़का भीख मांगता होगा तो रिश्ता देंगे, वरना नहीं, क्योंकि भिखारी होने से बरादरी में बड़ा नाम होता है हमारा। फिर लड़के ने भी अपना नाम बनाने के लिए माजूर बन के तो मांगना शुरू कर दिया। वो बेचारे का नाम तो नहीं बनया, ओदे वारंट बन गए। यार ये क्या फजूल बात कर रहे हो, भिखारियों को क्या भिखारी का रिश्ता चाहिए होता है? हाँ, यार उनका एक फैमिली वर्क होता है, वो तो रिश्ता जब हो रहा होता है ना तय, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं कि देख लें हमने कोई छोटे मोटे भिखारी से अपनी लड़की नहीं ब्यानी, क्योंकि हमारी लड़की अल्लाह के करम से गुलबर्ग में मांगती है, उससे छोटी तो अब डिफेंस में मांगना शुरू हो गई। और देखें देखें, हमारी बच्चे के लिए आपके बच्चे का रिश्ता है, आपके बच्चे की एक बाजू नहीं है। मेरी बेटी को एक रिश्ता आ रहा था, उस लड़के के 2 बाजू नहीं थे। हमने फिर भी इनकार कर दिया था। इस तरह की बातें करती हो कि हमारी बच्ची गुलबर्ग में मांगती है, सॉरी आपका बच्चा तो समनाबाद मांगता है, वो तो हम अफोर्ड नहीं समनाबादों मिलता की होना है, सुकी रोटी ते सालन। साडी कुड़ी ते हर दूजे घर चों परौंठे लैके आंदी। जिस दिन बच्चों ने स्कूलों छुट्टी हुंदी है उस दिन ते साडी बच्ची बर्गर ते पिज़्ज़े भी इकट्ठे कर ले आंदी।
ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ वाला है, देख लवो। अच्छा जेम्स बॉन्ड, ये बताओ कि अगर ये हमारे दानिश्वरों के मोहल्ले में जाए और वहां से कुछ लेकर आना हो तो क्या क्या लेकर आएगी, जरा बारी बारी सबके बारे में बताओ। ਗੋਗੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਫਕੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 19 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਘਮੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੋਗੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ। हाँ हाँ, गोगे का महल्ला फकीरों के लिए नो गो एरिया है। ये तो फकीरां ने जेड़ा पिछों इकट्ठा कीता हुंदा वो भी खो लैंदा है। ये बात नहीं है जेम्स बॉन्ड, हमारी सोसाइटी में फकीरों का दाखिला ममनू है। ओह ये कहा करो हमारी सोसाइटी में गैर फकीरों का दाखिला ममनू है। इनकी सोसाइटी वाले कहते हैं जी कि हम अपने इलाके में फिक्स होते हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं हम उसी में मांगते हैं। खबरदार कोई बाहर से फकीर हमारी सोसाइटी में आया था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੋਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਏ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆਉਣ ਨਾ। यार, मैं तो समझ रहा हूँ बड़ी हाई फाई सोसाइटी है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਫਾਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और थैले और का दरवाजा भी कोई फकीर नहीं खड़काता। अच्छा ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चौका मारने जीत ले, झकचा झकचा झकचा। ਇਹਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜੇ। लो जनाब, आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और दीगर स्टेक होल्डर्स की तवील मुलाकातों और मुशावरतों के बाद पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 15 फरवरी को होने जा रहा है। वाओ! छक्का मारने जीत ले, चौका मारने जीत ले, झकचा झकचा झकचा। अल्लाह खैर करे, कुर्सियां तो लकड़ी की हैं, इनमें करंट किस तरह आ गया है। ये कौन है भाई साहब जो चीखे मार रहे हैं? और जनाब, बाहुबली फिल्म का डायरेक्टर है। फिल्म ज्यादा हिट हो गई है, खुशी से पागल हो गया है। ओ भाई पूछो मत, मैं कितना खुश हूँ। भाई वर्ल्ड कप में उस वक्त तक मजा नहीं आता जब तक इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। छक्का मारने जीत ले, चौका मारने जीत ले, झकचा झकचा झकचा। ਇਹਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜੇ। और यार, ये क्रिकेट लवर है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहाल होने पर खुशी मना रहा है। और सर जी, ये तो आम पाकिस्तानी है तो खुश हो रहा है, असल तो मेरे अंदर खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू फूट रहे हैं, बर्फी फूट रही है और कलाकंद फूट रही है जनाब। ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਮਕ ਪਾਰਾ ਖਾਵੇਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ओ भाईजान, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, जगह आपे ही वसी हो जाती है। ओ मेरा ख्याल ये स्टेडियम में दाल बेचने वाला लड़का है। ओ भाई, ये दाल बेचने वाला नहीं, मैं समझ गया हूं कि इसने करोड़ों कहां से कमाने हैं। लाजमन जुआ खेलेगा मैच पे। पुलिस 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 पुलिस। ओ हजूर, खुदा को डरो, शरीफ आदमी है, तुसी इल्जाम ला रहे हो। नहीं तो फिर करोड़ों तुमने कहां से कमा लेने हैं? को पिच उखाड़ के दोबारा तमीर करने का ठेका मिल गया तुम्हें? वही पैसे कमाने के पुराने तरीके। हम जदीद लोग हैं जनाब, अगर आपने भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे ऐप का लिंक ले लें। खबरदार हो, इसकी बातों में कोई ना आए। मैं समझ गया हूं, ये जितनी भी ऐप चल रही हैं सब की सब फ्रॉड हैं। कभी आपने किसी जुआरी को अमीर होते हुए देखा है? नहीं। ये जो जुआ कराने वाले लोग हैं ना, यही लूटते हैं, यही करोड़ों कमाते हैं, और मस्कीन लोग ऐसे ही इनके चक्रों में आगे बेचारे तले जाते हैं। और जनाब, ये हमारे मोहल्ले में मन्ना गरीब है, भी छोटी सी रेड़ी लगाता था, ये मेरे बैनर के तले आया है। बहू जी, उसने ट्रिपल स्टोरी मकान बनाया है, वो भी टैलों वाला। वैसे अली साहब, इन लोगों को पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? ओ भाई, हुकूमत एक ऐप पर बैन लगाती है, ये 4 नई ऐप्स बनाकर दोबारा से वही काम शुरू कर देते हैं। आहा, इसे कहते हैं अक्लमंदी। आपने टेंशन नहीं लेनी हमारी ऐप बंद होने की, बस आपने हर गेंद दे के ये फैसला करना है कि अगली गेंद पे कितने लगाए जाएं। वही हुआ ना, जुआरिये हो। जुआरिया नहीं जी, थोड़ा सा डिसेंट बोलें।
बुकिया। बहुत अच्छे। बुकिया डिसेंट अपनी तरफ से क्या केमिस्ट्री की बुक पढ़ाते हो बच्चों को? बुकिया कौन सा डिसेंट लफ्ज है? मत बजी हुई है इन लोगों की ईमान से। जो बेचारे क्रिकेट के शौकीन हैं जी वो तो चले अपनी जगह पे ठीक खुशी मना रहे हैं। ये जो बुकिये हैं ये खाम खा खुश हो रहे हैं हाय और लुडियां डाल रहे हैं। बाकी इनका अरबों रुपए का बिजनेस खराब हो जाना था। अजीब हालत ये है कि पूरे इंडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। जितना जुआ दुनिया पे होता है ना जी, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में तो लोग इतना पैसा लगाते हैं जुए के ऊपर कि अल्लाह अल्लाह फीस। और सर जी लानत भेजे जुए पे। हमें तो इस बात की खुशी है कि दोबारा क्रिकेट देखने को मिलेगी। छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, चकचा चकचा चकचा। अपनी गली च छक्का मार के तू एक शीशा तोड़िया ते हले तक गली च नहीं तू वड़दा पे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। आप सही कहते हैं। ये न्यू बहू बैंड का पैसे वाला बैग उठाता था, बीचों पैसे कड्ढे ने अगले काट देता। वैसे अजीजी साहब, पाकिस्तान ने मैच की हाँ करके बेइज्जती करवा दी है। पहले बड़के मार रहे थे, बाद में घुटने टेक दिए। अच्छा, ये भी एक अजीब मौक़िफ़ चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मान क्यों गया, और अगर मानना ही था तो पहले बढ़ के ना मारता। जब बात ये है कि भाई एमए नहीं मान गया। सबसे पहले तो ये जो जंग कहने लगी हुई थी ना जी बहस की, जी जी ये इंडिया वाले बल्कि इंडिया की जुआरी है और इंडिया की आवाम हारी है। जी हाँ। उन सबको ये पता है कि पाकिस्तान खेलना ना आया तो उनका अरबों खरबों का बिजनेस डूब जाएगा। आपको ये पता है कि इंडिया के जो बड़े बड़े फाइनेंसर थे अपने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। भाई उधर 1.5 अरब की आबादी है, उनके लिए तो क्रिकेट जो है वो खरबों का बिजनेस है। और पाकिस्तान ने ठीक मौका इख्तियार किया है। जरा सा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है तो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। भजे फिरे ने इधर उधर बेचारे सिफारिशां लबन, खुदा दा ना जे इन्होंने समझाओ कुछ। हाय जिवें महल्ले च जाके नहीं दुखी औरत कह रही होंदी है मसाया नूं कि आके मेरे खामद नूं कुछ समझाओ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सूरत हाल कुछ इस तरह की बन गई थी कि इंडिया में लोगों ने टिकट्स वापस करना शुरू कर दी थी। होटल्स की जो रिजर्वेशंस थी वो होना रुक गई थी। हाँ जी, अल्लाह के फजल से ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान अगर ना खेले वर्ल्ड कप में जी तो सारे हिल के रह जाते हैं। और जी पाकिस्तान ना खेडे तो क्रिकेट इंज ही लगदी है जिवें मटन खान लगे हो ते विच गोश्त ही कोई नहीं। मिर्जा साहब, मेरा दिल करदा मैं तुहाडे हत्थ चुम लवां जी। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਚੁਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਪਾਕਿस्तान ने एक बार किया नहीं खेलना, मुल पै गया। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान ने सही मौके पर चौका मारा है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि 9 बॉल पे छक्का मारा है, वो भी गोडा टेक के। वाह गल मुका के वो भी करना है। चौका चौका छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, चकचा चकचा चकचा। पूरी दुनिया च एक या 2 प्लेयर होंगे एडे कद दे ते रौला पाया नहीं। यार मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने दोस्ती, सफारतकारी और स्पोर्ट्समैनशिप एक साथ निभाई है। जिंदाबाद। मजा आ गया है। मैं तो कहता हूं कि पीसीबी ने बांग्लादेश के मौकफ का साथ देते हुए भारत को यह समझा दिया है कि तुम खेलों में सियासत करोगे तो पाकिस्तानी गुगली सारी दुनिया में मशहूर है। वाह अब बताओ ना जरा, छक्का मारने के चक्कर में कैसा क्लीन बोल्ड हुआ है इंडिया। हाँ फिर श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए मैच खेलने की हामी भी भर ली, बांग्लादेश के मफादात भी उसे दिलवा दिए। वाह। और पूरी दुनिया से जिन दोस्तों ने पाकिस्तान से ये मैच खेलने की दरखास्त की उन सब का मान भी रखा है। वाह यार, ऐसे ऐसे ममालिक से पाकिस्तान को सिफारिशें करवाई गई हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मगर आप ये देखें कि इंडिया का गोदी मीडिया कह रहा है कि देखो हमने पाकिस्तान को मनाया कि नहीं मैच के लिए। ये नहीं सोचते कि सऊदी अरब जा जाके खुद तरले किए हैं लोगों के कि पाकिस्तान से सिफारिश करो कि हमारे साथ खेले। और यार दुनिया पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर क्रिकेट देखने का सोच भी नहीं सकती। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बारात दरवाजे पे आ जाए तो विच लड़ाई ना होवे।
ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਜੀ ਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। दूल्हा विच कोई नहीं गया किधरे, ये बरात लैके आए ने या गोलामा लैके आए ने। और अगर वर्ल्ड कप हो भी जाता जी, ना पाकिस्तान मानता, जो मिन्नतों तरलों से इन्होंने मनवा लिया है, हाँ जी, ना भी पाकिस्तान मानता अगर, और वर्ल्ड कप हो भी जाता, जी जी, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖੜਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੁਲਹਨ। जनाब, इस फैसले से कई घरों के चूल्हे ठंडे होने से बच गए हैं। अब आएगा मजा, हर गेंद पे जेब गर्म होगी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਹਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अजीजी, वैसे तो हमारे यहाँ भी जवारिये बुकिए हैं, पर इंडिया के मुकाबले में ना होने के बराबर हैं। इंडिया तो भरा पड़ा है और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज इस काम में मुलव्विस हैं। हाँ जी, बहुत बहुत बड़ा फाइनेंसर, अरबों रुपये लगाए हुए होते हैं उन्होंने इस काम में। रेट ही वहां से निकलता जुए का अजीजी, रेट ही वहां से निकलता, देखें। यस, और भाई इसको दफा करो, मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैंने तो एहतमाम किया हुआ था पाकिस्तान इंडिया मैच देखने का। अच्छा जी, ऐसा क्या एहतमाम किया था आपने? सबसे पहले तो इन्होंने मेरा ख्याल है ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन खरीदी। अच्छा, क्योंकि इस तरह का बंदा अल्लाह ना करे पाकिस्तान की कोई विकेट डिगे ना जी जी, तो गुस्से च उठ के टीवी च टक्कर भी मार देंगे, या बच्चा चुक के खलोते होने ते हथों बच्चा सुट देंगे ने। और बेगम ने एडी सोहनी हांडी बनाई हुंदी है, गुस्से चुक के तोड़ देंदे ने, उधर रख मैच वेख। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਕਟ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੀਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। भाई जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो मैं किसी को कमरे में नहीं घुसने देता। ओ यार आपने क्या नहीं घुसने देना, खुद भी कोई नहीं घुसता होगा, क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਚੁਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ। वैसे अली साहब, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि मैच का बाईकाट खत्म ना करते। डटे थे तो डटे रहते। ओए मनूसा, ओए मनूसा, चुप करके बैठा सैं ते बैठा ही रहंदा, तेनू कोई होर गल नहीं आउंदी? लो जी अली साहब, 18 मन दा मनूस मैं पहली बारी वेख्या जी। ऐसे गोगेर के ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋग ਐਵੇਂ बेतुका आडा ला के बैठ जाते हैं ना जी, जी, इनको कता नजर करते हुए अगर आप जरा देखें तो अमान से मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। देखिए पाकिस्तान ने अगर हाँ की है गोगा जी, तो अपनी सारी शराइत मुना के की। हाँ जी, बिल्कुल। ये नहीं हुआ कि किसी प्रेशर के नीचे आके हाँ की। बड़ा अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को अपनी इज्जत को इस क्रिकेट के मैदान में भी दुबाला करने का। बिल्कुल सही बात। अल्लाह के फजल से ये साबित हुआ है कि आपका जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान के बगैर सूना सूना है। हाँ जी, लोग दौड़ दौड़ जाते हैं, लोग पाकिस्तान को देखना चाहते हैं खेलते हुए। बिल्कुल। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी इंडियन देखना चाहते हैं या पाकिस्तानी देखना देखना चाहते चाहते हैं, हाँ हैं, जी। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्ला इंडिया कख नहीं करता बेचारा। हाँ, हारना जितना तो वो जाहिर है गेम में होता ही है। हाँ जी, पाकिस्तान ना खेले तो फिर काम खराब होता है। हाँ, अब देखे ना, अगर पाकिस्तान ना खेलता गौरी साहब, जी जी जी, तो इंडिया को 2 पॉइंट मिल जाने थे, यही होना था ना। यही बिल्कुल। मगर उन्होंने 2 पॉइंट को तरजीह नहीं दी। उनको पता है कि पाकिस्तान खेलने ना आया तो साडा वर्ल्ड कप फुस। आबा इस तरह फुस होना ही जिस तरह ट्रैक्टर का बड़ा टायर नहीं फुस हुंदा, और बड़ी देर तक फुस। ये चेनी हवा सी, वरना मैं होर बहुत देर तक फुस करना सी। अजीजी, ये हिंदुस्तान को क्रिकेट मैच की हार बर्दाश्त नहीं होती, तो ये जंग की हार कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब भी दावत पे जाए वो वाला सूट पहन के जाए और जाके कहो नहीं यार मैं दियांगा जे और यार मेरी जेब कटी गई जे। अच्छा जी, आज अपनी डिक्शनरी में से खुश रहने के चंद नुस्खे निकाल के लाया, वो आपको पेश करता हूँ। वाह जी, वाह। इसके साथ एहतियाती तदाबीर सबकी अपनी अपनी होंगी। अच्छा,
साइड इफेक्ट्स का ये जिम्मेदार नहीं होगा। हाय। चलो गुड अजीजी, बहुत अच्छी बात करने लगे हैं। मैं यार आजकल सैड सैड रहता हूँ, जरा खुश रहने के तरीके बताएं यार। यार ऐसे ऐसे नुस्खे बताऊंगा तुम इधर ही खुश हो जाओगे। अच्छा। लो जी, सबसे पहला जो खुश रहने का तरीका है, देखो जरा मैं सैड हूँ, सैड लग रहा हूँ। इस वक्त तो तुम हंसी वाले लग रहे हो। नहीं, मेरा ख्याल है तुम सैड लग रहे हो, मेरी हंसी निकल रही है। तो यार मेरी हंसी निकले, कोई ऐसी बात बताओ। हाय। यार अभी बताता हूं, तुम फिक्र ना करो। अगर आपने खुश रहना है तो बेगम की नसीहतों को बैकग्राउंड म्यूजिक समझो। ऐसे नहीं आप कहीं शादी पे या कहीं पार्लर पे जाते तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। बेगम की जो डांट डपट है, उसकी नसीहतें हैं, उसे बस बैकग्राउंड म्यूजिक। वाह जी वाह। रिश्तेदारों की नसीहत को मुफ्त डेटा समझो। वाह। इसका इस्तेमाल कोई जरूरी नहीं जरूरी होता। नहीं, बिल्कुल। दफ्तर और दोस्तों की हर तनकीद को फ्री इश्तिहार समझ के स्किप कर दो। देखो ना जरा, ऐसे कैसे नुस्खे बता रहा हूँ। यानी दफ्तर की और दोस्तों की जो हर तनकीद होती है उसको फ्री इश्तिहार समझे। ओहो टी। अगर खुश रहना चाहते हो तो जब बॉस डांटे तो सोचो ये भी अपने घर में डांट खाता होगा। जितना मर्जी जालिम बंदा आपको डांट रहा हो, बेशक SHO हो, बस जेन में उस वक्त ये ले आए कि यार इन्हों भी घरों बड़ी बेइज्जती होंदी होनी। अच्छा, अगर आप सुस्त हैं, ढिले हैं, काम काज आपसे नहीं होता और आप सोचते भी हैं कि यार मैं ढिला हूं, अब बाकी लोग देखो कितने तेज और कितने एक्टिव ने, तो ये इनमें फौरन ये सोच लें कि ये जो क्रिएटिव माइंडेड लोग होते हैं ना, ये सुस्त ही होते हैं। सुन रहे हो ना गोगे? और यार वो सुस्त लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें पता है वो तो इतना चुस्त है, इतना चुस्त है, रोज घर से आने से पहले भाभी से चुस्त खाता है। वो भाभी चुस्त मार मार के इसे काम में भेजती। उठ पो जा काम ते। अच्छा, सबसे कीमती खुश रहने का नुस्खा बता रहा हूं। जी सर। अगर खुश रहना चाहते हो तो बिजली के बिल को मोहब्बतनामा समझो। जब भी आपका बिजली का बिल आए तो आप ये इनमें को कंसीव कर लें कि ये लाइमन उसने मुझे लव लेटर लिखा। यार अजीजी बिल तो फिर जमा कराना पैना। यार बिल जमा कराना पड़ेगा, गुस्सा तो कम हो जाएगा ना। स्माइलिंग फेस से तो बैंक जाओगे ना जमा कराने के लिए। अच्छा, अगर खुश रहना चाहते हो तो ट्रैफिक में फंसकर गालियां और हार्न देने की बजाय ऐसे बैठो जैसे पिकनिक पे आए हुए हो। ब्लॉक हो ना ट्रैफिक, हो रहा हो, हाँ जी। तो आप ये सोच के गाड़ी चलाएं कि पिकनिक कैसी अच्छी जा रही है। वाह जी वाह। अच्छा, अब मैं शादीशुदा लोगों को एक खुश रहने का तरीका बताने लगा हूँ। जरा गौर से सुने सारे लोग। वाह, ये सुनने वाली। माशाल्लाह सारे शादीशुदा गान हैं। हाँ जी। अगर खुश रहना चाहते हो तो बीवी और सास की बातों को पॉडकास्ट समझकर सुनो। वाह वाह वाह। जब माँ और धी मिल के बीती कर रहे हो ना, या कोई लेक्चर दे रहे हो, तो आप ये सोच लें कि पॉडकास्ट देख रहे हो। असीसी, ये तो तुम टेंशन बढ़ाने की बातें कर रहे हो। देखो ना जरा, यानी पॉडकास्ट नहीं देखनी, टेंशन बता लेनी। साबित हो गया जी अली साहब, सच साहब तो बहुत डरते ने। ऐसे शायद मैं हैरान हूं कि तुम आज साबित कर रहे हो ये बात। मेरे यहाँ सोनिया, ये तो किसी से भी पूछोगे तो सारे ही बेचारे डरन ही गए होंगे। अच्छा, एक और गौर से बात सुन लें। जी। अगर कोई आपकी कॉपी कर रहा हो, नकल कर रहा हो, हाँ जी हाँ जी। यानी कोई दूसरे की गड्डी देख के यार इन्हें भी मेरे की गड्डी ले लेगी, हाय। या कोई सूट आपकी तरह का पहन के फिर रहा है तो आप गुस्से में आ जाएंगे, यार देखे यार ये गरीब आदमी ने मेरी जैसा सूट पहना हुआ है। हाँ। तो ये सोच के तो इग्नोर करें कि आप ट्रेंड हैं, ओह। लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, वाह जी वाह। आप ट्रेंडिंग हैं, ट्रेंडिंग। सही। अच्छा, अगर खुश रहना चाहते हो तो रोज आईने के सामने जाकर गाना जरूर गाओ। है? हाँ, जरूर गाना गाओ, अपना टाइम आएगा।
अच्छा ये गाना नहीं है अपना टाइम आएगा, जी 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 वो रोज शीशे के आगे खड़े होके गाओ। अच्छा, फिर खुश रहने का एक और बड़ा बेहतरीन तरीका है, जी सर। पुराने मोबाइल, गाड़ी और घड़ी पर शर्मिंदा होने की बजाय इन्हें नवादरात समझ के इस्तेमाल कर। अजीजी, ये बहुत अच्छी टिप है। आजकल ज्यादातर लोगों की यही टेंशन है। हाँ जी, हाँ जी। आप अगर कहें कि यार ये को नवा मोबाइल है मेरे को पुराना, ये कि यार इसकी घड़ी नवी मेरे पर, बस ये सोचे कि मैं इंटीक लवर हूँ और ये मेरे पास इंटीक हैं चीजें सारी। सही। और आपको पता है पूरी दुनिया पे इंटीक्स जो हैं वो कितनी कितनी महंगी होती है। हाँ जी। इस वास्ते 600 का मोबाइल भी खुशी नाल फाड़ लो। अच्छा, फिर अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जब कोई कहे लोग क्या कहेंगे, हाँ। तो जवाब में गाना शुरू कर दें, कुछ तो लोग कहेंगे, वाह वाह। लोगों का काम है कहना। वाह। और आप चूंकि मेरे प्यारे दानिश्वर दोस्त हैं और मुझे पता है कि हम किस कदर शदीद दानिश्वर हैं, आपके लिए एक बड़ी अहम टिप है। अगर आपको कोई कहे ना कि यार आप वैसे बहुत अक्लमंद हैं गौरी साहब, तो फौरन मान लें, उसे बहस ना करें, वरना आप 2-3 बातों के बाद पकड़े जाएंगे। और थैंक यू भी ना कहें, थैंक यू भी ना कहें, कहीं वो तफसील में ना पड़ जाए। आपको कोई कहता है कि यार ओ यू आर सो इंटेलिजेंट, यस 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 कह दें, बिल्कुल ठीक है। या ये कह दें कि यार मैंने पता है, बस तेरी खैर। ये तो हो गई तारीफ। जी। अब अगर कोई आपकी बदतारीफ ही करे ना जी, तो ये कह के दिल को तसल्ली दे लें कि ये मुझसे जेलस है, बस गल मुक गई। सही। जो मर्जी हो, कोई भी बात तारीफ ही करे तो ये सोच के ना ये जेलस है, हल्का सा कान पे खारिश करें और निकल जाए। वाह जी वाह। अच्छा, एक और बड़ी खुश रहने वाली अहम बात है, जी सर। अगर कोई आपकी गलती पकड़ ले तो खुद को डफर या अजीब समझने की बजाय समझें कि मैं मुनफरद हूं। और एक और खुश रहने का बहुत ही अहम नुस्खा है आप जैसे मेरे जैसे दानिश्वरों के लिए। जी जी। अगर कोई बात समझ ना आए हाँ जी। तो फौरी तौर पे उत्ते कंबल लेके सौ जाओ। जब आप लंबी तान के सोते हैं ना तो मसले खत्म हो जाते। मंगाओ फिर अली साहब 5 कंबल। ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। यानी शाज़म मेरी कैट और मुझे ही मैं हूं। मैंने ही नुस्खा बताया और मेरे ऊपर ही अप्लाई कर दिया। बड़ी बात है, फीस के बगैर इतनी खुशियों वाली बातें बताई आपने, हम सारे हैप्पी हो गए। गोगे को तो फर्क नहीं पड़ता, गोगा परेशान हो तब भी भूख लगती है, खुश हो तब भी भूख लगती है। ये एक और बड़ी अहम टिप दे रहा हूं आपको। जी। खुश रहना चाहते हो तो उधार मांगने वालों को 10 गुना बड़ी मजबूरियां बताने का हुनर सीख लो। क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो अपने प्रोग्राम निजामुद्दीन दी बैठक में फरमाते हैं कि रब जानदा मैं सारियां कोलों खुश हां ते सारे मेरे कोलों खुश ने, क्योंकि ना मैं कदी उधार मंगिया ते ना देता है। एक और आपको परेशान कुन फिक्रा सुनाई देता है अक्सर, उसका जवाब भी आपको मेरे से मिल जाएगा। अक्सर लोग कह देते हैं कि यार तू सारी जिंदगी कुछ भी नहीं कीता, तो फौरी तौर पे ज़हन में ये सोच लें कि इस बंदे ने भी इस गल दे सिवा और कुछ नहीं कीता। जेड़ा कह रहे हैं ना कि यार तू सारी जिंदगी कुछ नहीं कीता, हाँ जी। उन्हें भी इस गल तो अलावा और कुछ नहीं कीता। वाह जी वाह। वाह वाह वाह। अजीजी आपको किताब लिखनी चाहिए यार। लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, बस पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। जिस दिन मेरे पास कोई 250 रुपया हो गया मैं किताब छपवा लेनी। वाह वाह। अजीजी सिर्फ खुश रहने के तरीके बताते हैं या निहारी बनाने का भी तरीका आता है? उसके लिए आप अपने ये त्रियों वाले दानिश्वर से रजू करें। अच्छा, अब आप अगर दोस्तों के साथ कहीं पार्टी पे गए हैं, खाना खाने गए हैं और आपको ये ज़हन में है कि यार किधरे मैनू ना बिल देना पै जावे, क्योंकि अब सारी चीजें जो हैं वो खुल के सामने आ चुकी हैं कि जी जिन्हें बिल नहीं देना होता वो बिल देने दे वक्त उठ के बाथरूम से चला जाता है। तो कुछ को कुछ बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूँ। अच्छा। आप अपना घर में एक ऐसा सूट रखें जिसकी जेब नीचे से काट दें।
जब भी दावत पे जाए वो वाला सूट पहन के जाए और जाके कहो नहीं यार मैं नहीं आऊंगा जे और यार मेरी जेब कटी गई जे। इस तरह बिल के पैसे भी बच जाएंगे और को मखैर दोस्त आपको वापसी का 2-3 हजार रुपया किराया भी दे देंगे। और यहाँ पे एहतियात बड़ी जरूरी है, जब आपको दोस्त किराया दे वापसी का तो उन से जेब ची ना पा लेना। यार अजीजी आपने शो में सुना दिया है, अगर मेरे बाकी दोस्त भी जेब काट के आ गए तो फिर रल के होटल वाले मैनेजर को जाओ कि भाई जी असी इकट्ठे लुटे गए हैं। अच्छा असी तो लुटे गए हैं, अज तुसी भी लुटे गए हो क्योंकि बिल असा नहीं देना आज। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।